کتنے لوگ چنے؟ 40 لوگ. 32 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانا عہد نامہ لکھا اور 8 وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا عہد نامہ لکھا. اور 1600 سال میں یہ کتاب لکھی گئی. کتنے سالوں میں؟ 1600 سالوں میں یہ کتاب لکھی گئی. 1189 باب، 31,102 آیات، 7,88,258 اس کتاب کے الفاظ ہیں. لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے، مگر میں ہمیشہ ہی بائبل بدلی نہیں، بدلا دیتی ہے، جانور سے انسان بنا دیتی ہے. زوردار تعلیم. ایمان کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. ایمان کے تعلق سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، عہد جدید میں سے مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب، 21 سے 28ویں آیات مبارکہ. متی سے 15واں باب 21ویں آیت، 15واں باب 21ویں آیت، 21 سے 28ویں آیات مقدسہ. 15واں باب. آج میں ایک ایسی عورت کی آپ کو کہانی بتانے جا رہا ہوں. یہ عورت نہ تو مسیحی ہے، یہ عورت نہ یہودی ہے، یہ بائبل کو نہیں جانتی، یہ کسی کو نہیں جانتی، یہ خدا کے آئین قوانین اور اس کی شریعت کو بھی نہیں جانتی. مگر اس عورت نے سن رکھا ہے کہ یسوع ایک ایسا شخص ہے، جب گزرتا ہے تو مردے زندہ ہوتے ہیں، جاتا ہے تو لنگڑے چلتے ہیں، وہ مٹی پکڑ کے آنکھوں کو لگاتا ہے تو نبینا بینے ہو جاتے ہیں. یسوع ایک ایسا شخص ہے کہ جو پانیوں پہ چلتا ہے. یسوع ایک ایسا شخص ہے جو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کے برکت دیتا ہے، 5000 کو سیر بھی کرتا ہے اور 12 ٹوکرے بھی بچاتا ہے. یہ ملک کنعان کی رہنے والی ہے، یہ بتوں کو ماننے والی ہے، بدھ مت گھرانے سے ہے، یہ مسیحی نہیں ہے، یہودی بھی نہیں ہے. مگر آج جب آپ اس کی کہانی سنیں گے تو آپ ایمان میں اپنے آپ کو چھوٹا سا سمجھیں گے. آپ یوں سمجھیں گے کہ آپ کا ایمان بہت چھوٹا ہے اور اس عورت کا ایمان بہت بڑا ہے. آمین. جی آپ 21ویں آیت سے پڑھیں. پھر یسوع وہاں سے، اونچی آواز میں ذرا. پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدیا، یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا، 2 شہروں کا نام ہے، سور اور سیدا میں روانہ ہوا، علاقہ کو روانہ ہوا. یعنی یسوع مسیح جب وہاں سے نکلتا ہے تو سور اور سیدا بیچ میں آتے ہیں. ان علاقہ وہاں اس علاقے سے نکل کے سور اور سیدا کی طرف جا رہا ہے، اور یسوع اکیلا نہیں ہے، یسوع کے ساتھ 12 شاگرد ہیں اور ہزاروں کی بھیڑ ہے. آج آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے خادموں کی جب میٹنگز ہوتی ہیں تو ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں، 20,000 30,000 40,000 50,000 کے قریب، 1 لاکھ کے قریب لوگ ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے نام سے آج میٹنگز ہو رہی ہیں، جب وہ آتا ہوگا تو کتنی خلقت ہوگی. کچھ لوگ کہتے تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یسوع کون ہے جو پانیوں پہ چلتا ہے. کچھ لوگ کہتے تھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے جس نے پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کو میں بنا دیا. وہ کون ہے جو 4 دن کے مردے کو حکم دیتا ہے اور قبر میں سے کفن سمیت باہر آ جاتا ہے. آج ہم اس یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگ کلام کے شوقین تھے کہ کہتے تھے کہ یسوع کلام بہت اچھا سناتے ہیں، ہم سنیں گے یسوع. ہم نے سنا ہے کہ یسوع تمثیلوں اور مثالوں میں بڑا خوبصورت کلام سناتے ہیں، اور لوگ دیکھنے کے لیے اس کو جاتے ہیں اور بہت بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے. بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے. یسوع جا رہا ہے، بیچ میں سائڈوں پہ بہت سارے لوگ ہیں، شاگرد ہیں، پیچھے ایک عورت بھاگتی جا رہی ہے اور چلا رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہے. جی. اور دیکھو ایک کنعانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد. ایک عورت کنعان سے نکلی، کنعانی سرحد سے آئی اور بھاگ رہی ہے، یسوع کے پیچھے چلا رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے، یسوع یسوع ابن داؤد مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ رحم کر. ایک اکیلی عورت ہے، صنف نازک ہے، اکیلی ہے اور پیدل چلتی ہوئی. اس وقت نہ ہی تو کوئی گاڑیاں تھیں، اس وقت نہ ہی کوئی ایروپلین وغیرہ تھے، نہ ہی کوئی ایسا ٹرین کا کوئی سسٹم تھا. تو یا لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، یا گدھوں پہ سفر کرتے تھے، یا بیل گاڑیوں پہ لوگ سفر کرتے تھے. تو یہ عورت بڑی دور سے آئی ہے، پکار رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے یسوع مجھ پہ رحم کر. مجھ پہ کیا کر؟ رحم کر. جی. ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی مدعا بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے. بیٹی نو نال لے کے نہیں، بیٹی نو گھر چھڈ کے آئی ہے تے آپ ہی کلی دعا کروان واسطے آئی ہے. کیسا ایمان ہے.
आज कोई मरीज होता है तो हम उस मरीज को साथ लेके जाते हैं कि चलें जी पादरी साहब के जाते हैं पास, पादरी साहब इसके ऊपर हाथ रख के। बाज दफा हम दुआ करते हैं पूरे चर्च के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग एंड में आ जाते हैं पास सब हाथ रख के तुसी नहीं कीता दुआ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है सिर ते हाथ रख के मेरे ते दुआ करो, मैनू मजा नहीं आया, मैनू बरकत नहीं मिली। ये हमारा ईमान है। लेकिन ये औरत, इसका ईमान देखें, बेटी घर में है, मुल्क कुनान में है, और ये अकेली आ गई है उस बेटी के लिए शिफा लेने। इसका ईमान है कि यीशु यहाँ से कह ही देगा तो मेरी बेटी आमीन आमीन। जी। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और चुपके से चलता जा रहा है। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਜਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਹਦੀਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਦਇਅਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ 'ਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਦੀਆ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਦਇਅਕੀ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਜ ਖੁਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਂ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਖੁਦਾ ਤੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਡਿਸਟਰਬ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ? ਅਸਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਤੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ में दाखिल नहीं हो सकता। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮਾਰਿਆ ਕਿਨੇ ਨੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਸ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਨੇ? ਵੀਲਿੰਗ ਕਿਨੇ ਕਰਾਈ? ਖੁਦਾ ਆਂਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। खुदा ते कहता है चुगलखोर खुदा की बादशाहत में दाखिल, नशाबाज खुदा की, बदीखोर खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा, जना करने वाला लौंडेबाज खुदा दे बुरे कामां तो मना करदा है। ते अपने गुनाह दे विच आप ही लोग मारदे ने ते इल्जाम किदे ते लांदे ने? खुदा दे। किदे ते लांदे? खुदा ते। बहुत सारी चीज़ां नवीं ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ लेकिन वो साडे दिमाग 'ਚ नहीं सण आ रही। आमीन जी, जारी रखें। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की। शागिर्दां नूं तरस आ गया, एक औरत पीछे भजी जा रही है, बार बार कह रही है यीशु यीशु इब्ने दाऊद मुझ पे रहम कर। यीशु नहीं सुन रहा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? शागिर्दां नूं तरस आ गया, शागिर्द कहते हैं ऐ उस्ताद, ऐ नेकोकार, ऐ उस्ताद, ऐ खुदावंद, ऐ औरत नूं कुछ ना कुछ दस, ओनूं हाँ या ना दा जवाब दे, साडे पिछे पिछे बेचारी दौड़ी आउण दी। लेकिन यीशु ने बड़ा सख्त जवाब दिता, जरा सुनियो जी। उंगली रखें बेटा, उंगली रखें, टाइम ना लगाया करें। उसे रुखसत कर दे क्योंकि वो हमारे पीछे चलती है। इसको हाँ या ना में खुदावन जवाब दे दे, या इसे रुखसत कर दे, वो हमारे पीछे पीछे भागती चली जा रही है, अकेली औरत है बेचारी। तो यीशु मसीह ने जवाब सुने जरा। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। दोबारा यही आयत पढ़ें। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों
के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈਓ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਪੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਓ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਖੁਸ਼ਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ, और साढ़े पिंड भी पादरी है, ये बड़ा बड़ा पादरी, जहाज तो बाद असीं होना नहीं आखोगे ना। पर इस औरत ने ऐसा नहीं किया। आज एक चर्च सानू बरकत ना मिले, एक चर्च का पादरी को सख्त गल करे, उथों निकलने दूजे चर्च, दूजे चों निकलने तीजे, असीं कहने नहीं इत्थे राशन नहीं दिंदे, उस चर्च जाने उत्थे बाबा राशन वंडदे ने, उत्थे नाल पैसे भी दिंदे ने, उत्थे नाल आ भी दिंदे ने। अज यह हाल है साडे चर्चिस दा, यह साडी कलीसिया दा हाल है। मगर इस औरत ने ऐसा नहीं किया। जब यीशु ने उसे जवाब दे दिया कि मैं सिर्फ इसराइलियों के लिए दुआ करता हूँ, दूसरे लोगों के लिए दुआ नहीं करता, दर हकीकत यीशु उसके ईमान को देखना चाह रहा था कि ये कहाँ तक मेरे पीछे पीछे आती है, ये कहाँ तक मुझे फॉलो करती है, ये कहाँ तक इसका ईमान मजबूत रहता है। आज आपके ईमान को भी खुदावंद यीशु मसीह मजबूत करना चाहता है, आपको देखना चाहता है ये कब तक मेरे पीछे आएंगे, ये कब तक सजदे करेंगे, ये कब तक दुआओं में ठहरे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस औरत ने क्या कहा? उसने जवाब में मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा अरे खुदावन मेरी मदद कर। उसने उसके पांव पकड़ लिए, उस रोई करलाई चलाई चीखे मारी, पांव पकड़ लिए, छोड़ा नहीं। उसने कहा हे खुदावन, ऐ मेरे रब्बी, ऐ उस्ताद, मुझ पे रहम कर, मैं पांव नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे पैरों में गिरी रहूंगी जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। मैं बरकत लेके जाऊंगी, शिफा लेके जाऊंगी, पीछे नहीं भागी। और साढ़े वर्गा को हुंदा ते जरा को पादरी सख्त गल करदे ने, चाह होर पादरी फिर तू कौन है? उसने पांव पकड़ ली, उसने कहा खुदावंद मुझ पे रहम कर खुदावंद, आज मैं बरकत लेके जाऊंगी, आज मैं शिफा लेके जाऊंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। पांव पकड़ लिए मजबूती से। लेकिन अभी भी यीशु ने हाँ नहीं की, एक और बड़ी सख्त बात कर दी, जरा सुने, आप हैरान हो जाएंगे। उसने जवाब में कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। कितनी सख्त बात यीशु मसीह ने की, लड़कों की रोटियां लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं है। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ना। पर इस औरत ने फिर ऐसा नहीं किया, फिर ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया, जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ जी, पढ़े। उसने कहा हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं। कबूल कर लिया उसने कबूल कर लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ खुदावंद, अपने आप को मान लिया कि हाँ खुदावंद हम कुत्ते हैं। कुत्ते भी खुदावंद अपने मालकों की टेबलों से जो टुकड़े गिरे होते हैं उठाकर खाते हैं। जो जमीन पर अपने आप को छोटा बनाएगा आसमान की बादशाहत में बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। बरकत लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, शिफा लेने के लिए, बहाली लेने के लिए, अप होने के लिए, सरबुलंद होने के लिए अपने आप को छोटा बनाना जरूर है। तकब्बर, गुरूर, अक्कड़ और गर्दन में ऐसे जो हमारे सरिया होता है, ये चीजें खत्म करके उसके कदमों में आ जाना है, अपने आप को छोटा बनाना है। हालेलुया। ये औरत उसके कदमों में से नहीं उठी, उसके पैरों में गिरी पड़ी रही। उसने कहा है खुदावंद मैं बरकत लेके जाऊंगी, शिफा लेके जाऊंगी। मान लिया हाँ खुदावंद, कुत्ते भी अपने मालिकों की टेबल से जो टुकड़े गिरते हैं वो ही खाते हैं। अपने आप को उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ खुदावंद। दर हकीकत फिर मैं ये कह रहा हूँ, यीशु मसीह उस औरत का ईमान देख रहा था कि ये कहाँ तक मेरे पीछे आती है, ये कहाँ तक मेरे साथ चलती है। आज आपको और मुझे भी खुदावंद देखना चाहता है, ये कब तक, कितने सालों तक, कितने दिनों तक मेरे साथ चलते हैं।
आमीन। ऐसी चंद के दिन दुआवां करके थक जाने, एक महीना दुआ कर लिया खुदावंद पादरी साहब बड़ी दुआ करने, यकीन करो साड़ी ते सुनी को नहीं जाने। लेकिन देखें ये औरत कहाँ से पैदल चल के आई है, मसीह के पीछे आई है, दूसरे मुल्क से आई है, और अगों एडा सख्त जवाब मिला, फिर भी पैर नहीं छड़िया ने क्या खुदावंद मैं बरकत लेके जाऊंगी। इसके बदले में, इसके रिवार्ड में यीशु ने इसे शाबाश दी। हालेलुया। शाबाश का मतलब है कि बरकत दे दी यीशु ने। और देखें एक वो औरत जो देवियों देवताओं के मानने वाली है, बुतों को मानने वाली है, इसने इतना बड़ा ईमान शो किया कि हमेशा के लिए किताबे हयात में अपना नाम लिखवा लिया। हमेशा के लिए आज उसका जिक्र हो रहा है, आप पढ़ रहे हैं। आने वाली नस्लें भी उस औरत को याद करेंगी और उसके ईमान पे फॉलो करते हुए अपने ईमान को मजबूत करेंगी। आमीन। इस औरत का जब हम ईमान देखते हैं और अपना ईमान देखते हैं तो अपने आप को यकीन जाने छोटा समझते हैं। और मैंने जब ये पहली दफा कलाम मेरा ईमान और मजबूत हो गया। मैंने कहा हम तो कुछ भी नहीं है, एक गैर मजहब औरत जो मसीही भी नहीं है, यहूदी भी नहीं है, कलाम को भी नहीं जानती, शरीयत को इतनी मजबूत ईमान में, तो हम तो कुछ भी नहीं। असी ते आटे च लूण भी नहीं, एडा कमजोर ईमान साडा। निकी निकी गल ते खुदा नाल लड़ाई कर लेंगे। खुदावंदा जा मैं गिरजे नहीं हो जाना, मैं चर्च नहीं हो जाना, तू मेरी सुनदा नहीं। खुदावंदा तू मेरे ते बीमारियां, खुदावंदा तू मेरे बच्चे बीमार, खुदावंदा तू मेरे नाल लड़ाइयां, डेली असी दुआ च लड़ाई कर रहे हैं खुदा नाल। यकीन करो ऐ साडी साडा ते खुदा दा इस किस्म दा ताल्लुक है। हाँ ठीक है, वो आपका बाप है और एक बच्चे को बाप से झगड़ना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं भी इंज दे झगड़ना चाहिए कि असी बाप साडा रुस जे साडे ते इंज दे लफ्ज नहीं बोलने। बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने ईमान को इस औरत की तरह मजबूत रखें। देखें शागिर्दों पे कितनी मुसीबतें आई, नबियों मुकद्दसों के ऊपर कितनी मुसीबतें, आजमाइशें, दुख आए, उनके मुकाबला में हम कुछ भी नहीं दुख उठा रहे। अपने आप को मजबूत करें, उसके कदमों में आ जाएं, उसके पल्लू को, उसके कपड़े के किनारे को पकड़ लें। उस 12 बरस की औरत की तरह घर में से सोच के निकली थी कि काश के उसके कपड़े के किनारे कोई छूने का मौका मिल जाए तो मैं शिफा पाऊंगी। और बाइबल में तो कपड़े का किनारा लिखा है, जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो लिखा है मसीह के जो कमीज था या जो वो चोगा था उसमें से एक धागा निकला हुआ था, उसने फक्त उसको हाथ लगाया था और उसने 12 वर्ष के मर्ज से शिफा पाई। आमीन। ये उसका ईमान था। घर से ये सोच के निकली थी कि आज अगर यीशु ना भी दुआ करेंगे, रश है, तो मैं इसके कपड़े के किनारे को या उसके कपड़े के धागे को हाथ लगा लूंगी तो मैं क्या करूंगी, शिफा पाऊंगी। याद रखें यीशु ने कहा अगर राई के दाने जितना भी ईमान हो तो इस पहाड़ को क्या उखड़ के नदी में जा लग तो जा लगेगा। आमीन। आए अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को, अपने ईमान को मजबूत करें। लम्बियां दुआवां करना बरकतां नहीं मिलदियां और बहुत रोजे रखना दुआवां बरकतां नहीं मिलदियां जिन्नी तक साडा ईमान मजबूत नहीं। अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें। थोड़ी भी दुआ करें लेकिन ईमान के साथ, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपका दिल, आपकी रूह खुदा के साथ जा मिले, आपकी और खुदा की कमिटमेंट ऐसे हो जाए। आमीन। आमीन। दुआ, दाल दिल से दुआ करना, ऐन अकल से दुआ करना, अलफ ईमान से दुआ करना। दिल से जो कुछ आप मांग रहे हैं वो दिल से मांगे, और अकल से इसलिए मैंने कहा कि जो कुछ आप मांग रहे हैं खुदावंद टीवी भी दे दे, फ्रिज भी दे दे, गड्डी भी दे दे, लालच वाली दुआ नहीं होनी चाहिए। और आखिर में अलिफ है, ईमान से दुआ करना। आमीन। यही वाली बात कि आपकी दुआ में, आपकी हर एक चीज में ईमान हो, तब आप सरफराज होंगे, आपका घराना, आपका खानदान, आपकी जिंदगियां बहाल होंगी। इस दवाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे और फाइनेंशियली तौर पे और रूहानी तौर पे आप अप हो जाएंगे, सर बुलंद हो जाएंगे। आपकी जिंदगियों के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगियों के क्राइसिस, आपकी बीमारियां, आपकी टेंशनें, आपकी फिक्रें खत्म हो जाएगी जब आप अपनी फिक्रें उसके कदमों में रखते हैं। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीला से आप